Hello all. Welcome to all my dear students. Physical fitness is not an exercise but a mindset. राष्ट्र सेविका समिति और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ प्रतियोगिता मणिकर्णिका 2023 जो 3 दिसंबर रविवार को 7:30 बजे रेड फोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता केवल महिलाओं के लिए है और मैं इसमें उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अपनी सफल भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी और आप सब मेरी मदद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम इस इंफॉर्मेशन का, इस सूचना का हम शेयर कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। Who is Manikarnika? Manikarnika, also known as Rani Lakshmibai, was one of the most influential and courageous women in Indian history. She was the queen of Jhansi, a princely state in northern India, and she led a rebellion against the British East India Company in 1857. She is widely regarded as a symbol of resistance, patriotism, and women's empowerment in India. कौन है मणिकर्णिका? मणिकर्णिका, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली और साहसी महिलाओं में से एक थी। वह उत्तरी भारत की एक रियासत झांसी की रानी थी और उन्होंने 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें व्यापक रूप से भारत में प्रतिरोध, देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। Manikarnika's importance in Indian women's upliftment can be seen from various perspectives. She challenged the patriarchal norms of her time and asserted her right to rule her kingdom after the death of her husband. She refused to accept the British policy of annexation, which aimed to take over the lands of Indian rulers who did not have a male heir. She inspired many other women to join her army and fight for their freedom. Some of the notable women who fought alongside her were Jhalki Kashibai, and Mundar. They showed remarkable bravery and skill in the battlefield, proving that women can be as strong and capable as men. भारतीय महिला उत्थान में मणिकर्णिका के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। उन्होंने अपने समय की पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य पर शासन करने के अधिकार का दावा किया। उन्होंने ब्रिटिश कब्जे की नीति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसका उद्देश्य उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करना था जिनके पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने कई अन्य महिलाओं को अपनी सेना में शामिल होने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ लड़ने वाली कुछ उल्लेखनीय महिलाओं में से छलकीबाई, काशीबाई और मंदर थीं। उन्होंने युद्ध के मैदान में उल्लेखनीय बहादुरी और कौशल दिखाया, जिससे साबित हुआ कि महिलाएं पुरुषों की तरह ही मजबूत और सक्षम हो सकती हैं। She became a role model for generations of Indian women who aspire to be leaders in various fields. Her life story has been depicted in many books, films, and songs which celebrate her courage, intelligence, and charisma. Rightly, a coincidence which comes into my mind is regarding the Manikarnika Ghat, which is one of the holiest and oldest cremation grounds of Varanasi. It is believed to be liberating humans from the cycle of life and death towards moksha. In the similar manner, one can relate Manikarnika of Jhansi, who liberated women and Indians from the fear of slavery and subjugation. The name Manikarnika comes from the legend that the earrings of goddess Sati, the consort of Lord Shiva, fell here when he carried her burning body across the sky. The Ghat is also a Shakti Peeth, a place of worship dedicated to the divine feminine energy. In the same way,
feminine divine energy is reflected by the life of Rani Lakshmibai. The Ghat is a place of intense spirituality, devotion, and reverence. Same is true for contribution of Manikarnika of Jhansi. वो उन भारतीय महिलाओं की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन गई जो विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनने की इच्छा रखती हैं। उनकी जीवन कहानी को कई किताबों, फिल्मों और गानों में दर्शाया गया है जो उनके साहस, बुद्धिमत्ता और करिश्मे का जश्न मनाते हैं। मेरे मन में जो संयोग आता है वो मणिकर्णिका घाट के संबंध में है जो वाराणसी के सबसे पवित्र और सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसी प्रकार रानी झांसी की मणिकर्णिका के संबंध को हम समझ सकते हैं जिसमें महिलाओं और भारतीयों को गुलामी और अधीनता के भय से मुक्त कराया। मणिकर्णिका नाम उस किंवदंती से आया है कि भगवान शिव की पत्नी देवी सती की बालियां यहाँ गिरी थी जब वह उनके जलते हुए शरीर को आकाश में ले गए थे। यह घाट एक शक्तिपीठ भी है जो दिव्य स्त्री ऊर्जा को समर्पित पूजा स्थल है। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से स्त्री दिव्य ऊर्जा परिलक्षित होती है। यह घाट गहन आध्यात्मिकता, भक्ति और श्रद्धा का स्थान है। यही बात झांसी की मणिकर्णिका के योगदान पर भी लागू होती है। Reasserting Rani Lakshmibai in New India and what women can learn from her contribution. Fearlessness. Rani Lakshmibai was known for her bravery and fearlessness in the face of adversity. She was not afraid to stand up for what she believed in and fight for country's freedom. Leadership. Rani Lakshmibai was a natural leader who inspired her troops to fight for their country's freedom. She was a skilled strategist who led her army into battle and fought alongside them. Empowerment. Rani Lakshmibai believed in women's empowerment and education. She was a progressive thinker who encouraged women to take up arms and fight for their country's freedom. Patriotism. Rani Lakshmibai was a true patriot who loved her country and was willing to do whatever it took to secure its freedom. Her love for her country and her people inspired her to fight against the British and become a symbol of resistance. रानी लक्ष्मीबाई को पुनः नए भारत में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि महिलाएं उनसे बहुत कुछ सीख सकती थी, जैसे निडरता का आधार, जैसे सशक्तिकरण का आधार, जैसे देशभक्ति का आधार। तो ये सारी बातें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही और मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Physical and mental strength. Her physical strength and mental fortitude are a treatment to her unwavering spirit and determination. She was known for her bravery and fearlessness in the face of adversity. Her leadership skills and strategic thinking here are also remarkable as she inspired her troops to fight for their country's freedom and led them into battle. Progressive views. Rani Lakshmibai's progressive views on women's empowerment and education in 19th century India are also noteworthy. She believed in women's empowerment. Conclusion. What we can conclude is that Rani Lakshmibai's physical and mental strength can serve as an inspiration to women everywhere. Her fearlessness, leadership skills, and progressive views on women's empowerment are qualities that can be emulated by women of all ages and backgrounds. Her legacy is a reminder that women can be strong, independent, and capable of achieving great things. शारीरिक और मानसिक शक्ति के संदर्भ में हम उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो आधार है, उनको हम देख सकते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता उनकी अटूट भावना और दृढ़ संकल्प का प्रमाण मात्र थी। वह विपरीत परिस्थितियों में अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जानी जाती थी। उनके नेतृत्व कौशल और रणनीतिक सोच भी उल्लेखनीय थी क्योंकि उन्होंने अपने सैनिकों को अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध में नेतृत्व किया।
प्रगतिशील विचारों को भी हम उनके संदर्भ में, उनके आधार में देख सकते हैं। निष्कर्षतः रानी लक्ष्मीबाई की शारीरिक और मानसिक शक्ति हर जगह की महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम कर सकती हैं। उनकी निडरता, नेतृत्व कौशल और महिला सशक्तिकरण पर प्रगतिशील विचार ऐसे गुण हैं जिनका अनुकरण सभी उम्र और पृष्ठभूमि की महिलाएं कर सकती हैं। उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि महिलाएं मजबूत, स्वतंत्र और महान चीजें हासिल करने में भी सक्षम हो सकती हैं। तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि ब्रेवरी लीड्स टू इटर्निटी, और महिला सशक्तिकरण को जो ये आधार पूरा मिला है मणिकर्णिका के संदर्भ में अगर हम देखें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महिला सशक्तिकरण का पूरा संदर्भ मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जी के जो आधार है उससे चरितार्थ किया जाता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मणिकर्णिका केवल एक शब्द नहीं बल्कि महिलाओं के जीवन जीने का आधार मात्र होना चाहिए। और हम सबको इसको मिलके सफल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि हम राष्ट्र निर्माण में एक सराहनीय और सफल भूमिका निभा पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, ये मणिकर्णिका की जो दौड़ है ये बहुत अहम है और आप सब इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों को हम इस सूचना के बारे में सूचित करें और ये पूरी जानकारी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह दौड़ केवल सिर्फ एक दौड़ मात्र नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है और पूरा का पूरा यह राष्ट्र निर्माण में ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो सबको धन्यवाद बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इससे काफी लाभान्वित होंगे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।